ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے افتتاحی تقریب کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کینپ 3 کا افتتاح کر دیا ہے، جبکہ یہ پاور پلانٹ چین کی شراکت سے بنایا گیا ہے۔ منصوبے سے بجلی کی مجموعی پیداوار 2200 میگا واٹ ہو جائے گی۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر توانائی خورم دستگیر خان اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہر کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کینپ 3 کا افتتاح کر دیا۔ یہ پاور پلانٹ چین کی شراکت سے بنایا گیا ہے۔ منصوبے سے بجلی کی مجموعی پیداوار 2200 میگا واٹ ہو جائے گی، جبکہ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر توانائی خورم دستگیر خان اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کرنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ 3 پاکستان چین دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ 3 کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ پاکستان $27 ارب کا ایندھن برآمد کر رہا ہے۔ پاکستان کو سستے ایندھن کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے۔ داسو ڈیم منصوبے پر کام جاری ہے۔ توانائی کی ضرورت پوری کرنے میں بجلی کردار ادا کر سکتی ہے۔ امید ہے دوست ملک چین فی میگا واٹ کی قیمت کم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں ایٹمی بجلی گھر کے K3 کا افتتاح کر دیا۔ چین کی شراکت سے تعمیر ہونے والے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے 30 یونٹ کے آغاز سے کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بجلی کی مجموعی پیداوار 2200 میگا واٹ ہو جائے گی۔ منصوبے کے افتتاح کے موقع پر خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان $27 ارب کا تیل امپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کو توانائی کے سستے ذرائع کی ضرورت ہے۔ داسو ڈیم منصوبے پر کام جاری ہے۔ Pakistan is imported fuel to the tune of $27 billion, an amount we can hardly afford to finance our expensive imports. With K3 in operation, the total power generation at this site amounts to 2,200 megawatts, and in total our nuclear power generation is about 3,600 megawatts. انہوں نے کہا کہ آنے والے سالوں میں متبادل توانائی کے منصوبوں سے سستی بجلی حاصل ہوگی۔ پاکستان سورج اور ہوا سے سستی بجلی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ شمسی توانائی سے اور ونڈ پروجیکٹ جو ہیں، جو پن بجلی کے منصوبے جو ہیں، یہ ہیں جس سے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آگے بڑھے گی، اور اربوں ڈالر کی جو ہم امپورٹس کرتے ہیں کروڈ آئل کی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی، اس میں بچت ہوگی۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ دورہ کراچی کے دوران شہباز شریف نے وفاقی وزیر شازیہ عطامری کی رہائش گاہ پہنچے اور ان کی بیٹی کی شادی پر دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے نوبیاتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر توانائی انجینئر خورم دستگیر اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے گرین لائن بس پروجیکٹ کے کنٹرول روم کا دورہ کیا اور BRT گرین لائن بس کے روٹ کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ چین کے تعاون سے جدید منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں۔ گرین لائن کے ایکسٹینشن کے لیے اگلا منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ سائٹ ایریا میں $4.5 ارب کی گرانٹ سے نئی سڑکیں بنائیں گے۔ کراچی میں پانی کے منصوبوں کے لیے بھی فنڈز فراہم کر رہے ہیں۔ پچھلے 4 سالوں میں ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔ چین پاکستان دوستی کا ایک اور شاہکار منصوبہ K3 اس کی اناگریشن کی ہے۔ K2 اور K3 یہ 2 نیوکلیئر پاور پروجیکٹس ہیں جو مل کر
2200 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं और इन दोनों मंसूबों ने पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में खुद कफालत के लिए और स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये चीन के ताउन से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मंसूबे हैं जो पाया तकमील को पहुँचे हैं और इनका संगे बुनियाद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रखा था मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में और आज शहबाज शरीफ साहब के हाथों इनका इफ्तिताह हुआ है, तो उस दौर का एक और मंसूबा पाया तकमील को पहुंचा है। इसी तरह कराची में कराची शहर की तारीख की पहली मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो ग्रीन लाइन है, इसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 और 18 के दरमियान 25 अरब रुपए की लागत से शुरू किया था और आज इसकी 1 साल की सालगिरह हो चुकी है। इसको कराची के अवाम को 1 साल से सहूलत फराहम करते हुए कामयाबी के साथ चलाने पर मैं SIDCL की वो टीम, वो इंजीनियर्स और वो स्टाफ जो इसको बेहतरीन बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक चला रहे हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह इस ग्रीन लाइन की एक्सटेंशन के लिए भी हम अगला मंसूबा शुरू कर रहे हैं, जिससे कि इसकी अगला जो फेज़ है उससे इस ग्रीन लाइन की अफादियत में मज़ीद इजाफा होगा। साथ ही साथ साइट एरिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4.5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत की ग्रांट से नई सड़कें बनाने का मंसूबा दिया है, जिसके ऊपर अनकरीब इंशाल्लाह काम शुरू होगा और जल्द ही वज़ीर आज़म उस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। साइट एरिया जो कराची शहर का पैदावारी हब है, पैदावार का मरकज़ है, बदकिस्मती से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हाल था, तो ये भी वफाकी हुकूमत की कराची के साथ कमिटमेंट है और कराची के लिए एक और तोहफा है कि जिसके ज़रिए हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को शाह का आपको बताते चले कि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से तुर्की के सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के तबादलों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि टेक्नोलॉजी के तबादले की तुर्की के वफ्द की जानिब से पेशकश को कदर की निगाह से देखते हैं। सिंध हुकूमत हर वो इकदाम करने को तैयार है जिससे सूबा तरक्की करे। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से तुर्की के सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि टेक्नोलॉजी के तबादले की तुर्की के वफ्द की जानिब से पेशकश को कदर की निगाह से देखते हैं। सिंध हुकूमत हर वो इकदाम करने को तैयार है जिससे सूबा सिंध तरक्की करेगा। तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का ओल्ड सिटी एरिया और II चंडीगढ़ रोड और इससे मुल्हका इलाकों का दौरा। सीवरेज सिस्टम समेत मुख्तलिफ नालों के कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन तरक्याती कामों की तकमील से इलाके के अवाम के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। हमें कराची के तमाम मसाइल हल करना है, अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलतें पहुंचा रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का ओल्ड सिटी एरिया और II चंडीगढ़ रोड और इससे मुल्हका इलाकों का दौरा। सीवरेज सिस्टम समेत मुख्तलिफ नालों के कामों की रफ्तार तेज करने की मुर्तजा वहाब ने हिदायत की और कहा कि इन तरक्याती कामों की तकमील से इलाके के अवाम के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। मजीद ये भी कहा कि हमें कराची के तमाम मसाइल हल करना है, अवाम को उनकी इस दहलीज पर तमाम सहूलतें पहुंचा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द से मुलाकात हुई, जबकि इस मुलाकात में रेड लाइन BRT बस सर्विस से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया।
मंसूबे में अब तक की पेशरफ्त और आइंदा के लाएअमल पर मुशावरत की गई। अवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात हुई। रेड लाइन BRT बस सर्विस से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ, जबकि इस मुलाकात में मंसूबे में अब तक की पेशरफ्त और आइंदा के लाएअमल पर भी तफसीली मुशावरत हुई। अवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ने एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम के हमरा 50वें पार्क का इफ्तिताह कर दिया। जिला बस्ती में पार्क्स बहाली प्रोजेक्ट की गोल्डन जुबली। जिला बस्ती में मजीद 6 पार्क्स की तज़ीनो आराइश के बाद उन पार्क्स को बहाल कर दिया गया है। नाज़माबाद का अखुवत और राह अमल पार्क, नॉर्थ अज़ाबाद का रानी बाग, उस्मान गनी पार्क गुलबर्ग, शरीफ शहीद पार्क न्यू कराची और KDA चौरंगी पार्क शामिल है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने मेहदी हसन के 9 तामीर मकबरे पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी के इस मौके पर उन्होंने कहा कि सियासत से बालातर होकर जिला बस्ती के अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। बल्दिया बस्ती के महकमा बागात की जानिब से तामीर नौ के बाद बहाल किए जाने वाले बागात की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद इसका वलीन हदफ है। सियासत से बालातर होकर जिला बस्ती की खिदमत कर रहा हूँ। उनका कहना था कि अवाम भी जिले की बहाली के कामों में ताउन करे। डॉक्टर आसिम ने जिला बस्ती की तरक्की और अवाम के फलाह बहबूद के साथ साथ बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन की मुलाजमत में बेहतरी लाने के लिए अपना ताउन जारी रखने का इजहार किया। इस सिलसिले में जिला बस्ती में किए जाने वाले नतीजा खेज मंसूबों और खिदमात पर डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये लोकल कम्युनिटी हमारे जो बोरी बरादरान हैं उनकी मदद से ये बना है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस शहर के लिए बिलखुसूस 7 पार्क और जिन्होंने एज ए कम्युनिटी इसमें मदद की है और जो बेशतर पार्क्स आ रहे जो इनॉग्रेट हो रहे हैं उसमें भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है और आज के दिन हम 7 पार्क इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बड़ा निगलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था उसमें जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल चेंजेस और एनी पॉलिटिकल एलियनेशन। मैं पॉलिटिक्स से बढ़ के चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की खिदमत हो और इधर के रहने वालों की भलाई हो और इधर के रहने वाले खुशहाल हो। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ हैं। पहले पार्क से आज 50 पार्क हमारे पूरे हो रहे हैं और हमने सोचा बेहतरीन काम ये है कि हम मेहदी हसन साहब के पार्क का जो मकबरा भी है उसके साथ पार्क भी बनाएं और वो हमारा 50वां पार्क हो कि जो हमने कम्युनिटी DMC और सब ने KMC ने सब ने मिल के बहुत कम कॉस्ट के अंदर सारे रिवाइव किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट 100 का है, वो भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है पार्क्स डिपार्टमेंट ने अपना जो 100 पार्क्स का इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेशली ताहा सलीम साहब का, वो आज हमने 50 पार्क कंप्लीट कर लिए हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब जो रिमेनिंग पार्क हैं, बकाया पार्क हैं, आप देखेंगे कि वो भी कचरे से मलबे से वहाँ उठा लिया जाएगा कचरा मलबा और अनकरीब वो आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जैसा कि आपके इल्म में अभी रिसेंटली हमने 2 फ्लावर शोज़ किए हैं। अभी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि बड़ा फ्लावर शो करने जा रही है DMC।
اس موقع پر طه سلیم نے ڈاکٹر عاصم حسین کی جانب سے ضلع وسطی کی عوام اور بلدیہ وسطی کے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے بیش قیمت تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر عاصم نے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی کے ہمراہ بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکار اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کے نو تعمیر مقبرے پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اور مہدی حسن کے لواحقین سے ملاقات بھی کی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیر حسن کہتے ہیں کہ بلدیہ غربی میں رہائش پذیر عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیم اور کھیل کود کی معیاری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی زیر اہتمام چلنے والے مولوی عبداللہ اسکول میں کرائے جانے والے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ سید شبیر حسن نے کہا کہ بلدیہ غربی کے اسکولوں میں تعمیر و مرمت اور سہولیات کی فراہمی کے لیے محدود وسائل میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسکول کی باؤنڈری وال، واش روم اور پانی کی ٹینکی کی تعمیر کروانے کے حوالے سے اسکول انتظامیہ نے درخواست کی تھی، جو کہ انتظامیہ بلدیہ غربی کم وسائل کے باوجود کروا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کم وسائل کے باوجود بھی یہاں کے طلباء اور طالبات کا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے۔ بلدیہ غربی کے اسکولوں میں تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے اساتذہ کرام بھی اپنے فرائض پوری دیانتداری سے انجام دے رہے ہیں۔ آخر میں اساتذہ نے اسکول کی تعمیر و مرمت اور سہولیات فراہم کرنے پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان کہتے ہیں کہ بلدیہ کورنگی کی مختلف ڈسپنسریز میں دوروں کا مقصد ان میں عوام کے لیے علاج و معالجے کی سہولیات کا جائزہ لینا ہے تاکہ آنے والے مریضوں کو علاج و معالجے کی زیادہ بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ ماڈل زون اور شاہ فیصل زونز میں موجود ڈسپنسریز کے معائنے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی محمد شریف خان نے متعلقہ ڈاکٹرز اور اسٹاف سے ملاقات کے ساتھ ساتھ وہاں مریضوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں دی جانے والی طبی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے ان سے معلومات لی۔ اس موقع پر چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایاز آبان نے انہیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ادویات کی کمی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کورنگی محمد شریف خان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو اعلیٰ حکام کے سامنے پیش کیا جائے گا اور امید ہے کہ اسٹاف کی کمی کا معاملہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ حل ہو جائے گا، جبکہ ادویات کے حوالے سے اپنے ذرائع اور کچھ نجی این جی اوز کے تعاون سے صورتحال پر قابو پائیں گے۔ مزید بولے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے گا مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ایاز آبان بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی سید شکیل احمد نے کہا ہے کہ ضلع شرکی کے مختلف علاقوں میں بلدیاتی مسائل کا معائنہ کر کے اس کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ باغ رضوان میں فلاور شو کے انعقاد کے حوالے سے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلدیاتی مسائل کے حل کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو تفریحی اور صحت مندانہ سرگرمیاں فراہم کر رہے ہیں۔ بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے ضلع شرکی میں ہر جگہ پہنچیں گے اور مسائل کے حل کو یقینی بنائیں گے، ایسا کہنا ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی سید شکیل احمد کا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی نے گلشن اقبال باغ رضوان میں فلاور شو کے انتظامات کا معائنہ کرتے ہوئے فوری طور پر انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے گلشن اقبال کے مختلف بلاکس کے دورے کے دوران وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ملبہ صاف کرنے اور سیوریج مسائل کو حل کرنے کے احکامات جاری کیے، جبکہ دورے کے دوران ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سید شکیل احمد نے یہ بھی کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر ضلع شرکی کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے بلدیاتی مسائل کا معائنہ کر کے ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کے حل کے لیے بلا
बला तातुल उमूर की अंजाम दही को यकीनी बनाया जाएगा। जब तक DMCs का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जिला शर्की के मकीनों को बल्दियाती खिदमात की फराहमी में अपना भरपूर किरदार अदा करता रहूँगा। बल्दियाती मसाइल के हल के लिए जिला शर्की में हर जगह पहुँचेंगे और मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे। शकील अहमद का कहना था कि बाग़ रिजवान में फ्लावर शो का इनेकाद करने जा रहे हैं। बल्दियाती मसाइल के हल को यकीनी बनाने के साथ शहरियों को तफरीही और सेहतमंदाना सरगर्मियां फराहम कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर अनीसुर रहमान सयाल ने कहा है कि मौसम सरमा की बारिशों के पेश नज़र पेशगी इक़दामात कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर अनीसुर रहमान सयाल ने मौसम सरमा की बारिशों के पेश नज़र नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, वायरलेस गेट और अतराफ का दौरा किया और मुमकिन बारिशों के हवाले से उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर ने अफसरान को हिदायत दी कि बल्दिया मलिर के छोटे बड़े 17 बरसाती नालों का मुकम्मल सर्वे किया जाए। जहां बरसाती नालों में पानी की निकासी मुतासर होने का खदशा है, वहां पेशगी इक़दामात किए जाएं। भैंस कॉलोनी के बरसाती नालों में जानवरों का फुजला डालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दौरे के दौरान गुफ्तगू में म्युनिसिपल कमिश्नर का कहना था कि मौसम सरमा की बारिशों के पेश नज़र पेशगी इक़दामात कर रहे हैं। बल्दियाती अमला बरसाती नालों से कचरा और मलबा निकालने के कामों पर मामूर है। बरसाती नालों में कचरा और फुजला फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट वालों ने हमारे साथ मीटिंग की थी जनवरी में। उसमें यहाँ हर साल यही प्रॉब्लम होता है, जब मानसून आती है तो यहाँ पानी जमा हो जाता है। हम इसीलिए अर्ली इसके लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि यहाँ पानी में न हो। कोई बल सफाई का काम है, कोई खुदाई का काम है, कोई कहीं नाले में कोई प्रॉब्लम है, उसको हम सीधा कर रहे हैं ताकि जो हर साल वाला प्रॉब्लम आता है वो नहीं आए और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इसी वजह से हमने ये एक्सरसाइज की है। मानसून से पहले, अलर्ट आने से पहले हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। डायरेक्टर सैनिटेशन बल्दिया मलिर नसीर अयूब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एयरपोर्ट के अतराफ बल्दियाती अमला नालों से कचरा और मलबा निकाल कर ठिकाने लगा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर स्वीपिंग का काम मामूल के मुताबिक जारी है। मानसून के हवाले से हम लोगों ने जो है 3 शिफ्टें बनाए। हमारे तकरीबन 290 का जो मैन पावर है सैनिटेशन डिपार्टमेंट का, वो हम लोग तकरीबन 3 शिफ्टों में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जैसे ही अगर अचानक किसी भी टाइम अगर कोई मानसून या कोई बरसात वगैरह हो गया तो हमारे टीम बिल्कुल 3 शिफ्टों में तैयार है, सुबह, दोपहर और रात को। उसके अलावा जितने भी नाले हमारे पास हैं, जो हमारे अपने नाले हैं, उनको भी हमने मैनुअली तरीके से जो हो सका कुछ मैनुअली तरीके और कुछ ऐसे मशीनरी ज़रूरत पड़ा एक्सीवेटर वगैरह पहले साफ कर दिए। दौरे के दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर ने सैनिटेशन अफसरान को हिदायत दी कि मुमकिन बारिशों के पेश नज़र डी वाटरिंग पंप को दुरुस्त हालत में तैयार रखा जाए और बारिश बरसने के साथ ही रेन इमरजेंसी प्लान पर इसके रूह के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत का कराची की खवातीन को बड़ा तोहफा। कराची की खवातीन को सफरी सहूलियात पहुँचाने में सिंध हुकूमत पेश है। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर कराची में पीपल्स पिंक बस सर्विस का आगाज हो गया है। खवातीन के लिए मखसूस बसों का रूट मॉडल कॉलोनी से टावर तक मुख्तस है, जबकि 30 से ज्यादा स्टॉप पर बसों ने सवारियां उठाई। 9 मीटर तवील एयर कंडीशन में बस में एक वक्त में 22 खवातीन ने सीट पर बैठकर जबकि 22 खवातीन ने खड़े होकर सफर किया। मुलाजमत पेशा खवातीन का पिंक बस सर्विस मुतारिफ करवाने पर इत्मीनान का इजहार। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट का अमला खासा मुतहरिक दिखाई देता है। इंक्रोचमेंट सेल ने जिला वस्ती में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 का टी ग्राउंड कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया गया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 की मोटरसाइकिल मार्केट के अतराफ भी कार्रवाइयां की गई, जबकि सड़कों और फुटपाथ से कब्जा खत्म करवाकर सामान जब्त करके केएमसी के स्टोर में जमा करवा दिया गया।
कराची के पार्क्स को कब्जा माफिया से वागुजार करवाने के लिए महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। बल्दिया उज़्मा कराची जिला वस्ती के अमले ने कब्जा माफिया से पार्क का हिस्सा वागुजार करवा लिया। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात ने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 में कायम टी पार्क में कार्रवाई करते हुए पार्क से तजावुजात हटा दी। पार्क के हिस्से में कार मैकेनिक ने कब्जा करके अपनी गाड़ियां खड़ी की हुई थी, जबकि पार्क के दूसरे हिस्से में फुटबॉल गेम वालों ने कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान एंटी इंक्रोचमेंट के स्टाफ को मामूली नौयत की मुजाहमत का सामना रहा, जिसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हुक्म पर आवाम की तफरी की जगहों की बहाली के लिए इकदाम किए गए। कार्रवाई डायरेक्टर जिला वस्ती कामरान अलवी ने की। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग डिवीजन फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में मोटरसाइकिल मार्केट के अतराफ पर रोड और फुटपाथ पर कायम तजावुजात के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में मुतादिद सामान जब्त कर लिया गया। तमाम कार्रवाइयों में स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस भी मौजूद थी। और यहाँ आपको बताते चलें कि शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा माफिया बेलगाम है। कराची के इलाके स्कीम 33 में कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ दिए हैं। स्कीम 33 स्टेट बैंक एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉटों पर कब्जे का मामला। नामालूम अफराद ने सोसाइटी में घुसकर जेर तामीर प्लॉट्स की दीवारें गिरा दी हैं। नामालूम अफराद की प्लॉट मालिकान को संगीन नताइज की धमकियां। मुतासरीन का कहना है कि हमारे प्लॉट KDA से मंजूर शुदा है। मुतासरीन ने बताया कि हमारे प्लॉट सोसाइटी की हुदूद में है, 1 इंच भी तजावुज नहीं किया। मुतासरीन का कहना है कि कब्जा ग्रुप ने सोसाइटी की चारों अतराफ की बाउंड्री वॉल भी गिरा दी है। मुतासरीन का बताना है कि कब्जा माफिया के कारिंदों ने रिहायशी मकानों में घुसकर खवातीन को ज़दोकोब किया। इससे कबल भी कब्जा माफिया ने सोसाइटी में घुसने की कोशिश की थी। वाक़े की FIR दर्ज करवा दी गई है। स्कीम 33 स्टेट बैंक एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉटों पर कब्जा। नामालूम अफराद ने सोसाइटी में घुसकर जेर तामीर प्लॉट्स की दीवारें गिरा दी हैं। नामालूम अफराद की प्लॉट मालिकान को संगीन नताइज की धमकियां। मुतासरीन का कहना है कि हमारे प्लॉट KDA से मंजूर शुदा है। मुतासरीन ने बताया कि हमारे प्लॉट सोसाइटी की हुदूद में है, 1 इंच भी तजावुज नहीं किया। कब्जा ग्रुप ने सोसाइटी की चारों अतराफ की बाउंड्री वॉल गिरा दी है। कब्जा माफिया के कारिंदों ने रिहायशी मकानों में घुसकर खवातीन को ज़दोकोब किया, जबकि इससे कबल भी कब्जा माफिया ने सोसाइटी में घुसने की बारहा कोशिश की थी। जबकि मुतासरीन ने कहा कि वाक़े की FIR दर्ज करवा दी है। कराची में कब्जा माफिया बेलगाम है। स्कीम 33 में कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ लिए। स्कीम 33 स्टेट बैंक एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉटों पर कब्जा। नामालूम अफराद ने सोसाइटी में घुसकर जेर तामीर प्लॉट्स की दीवारें गिरा दी। नामालूम अफराद की प्लॉट मालिकान को संगीन नताइज की धमकियां। मुतासरीन का कहना है कि हमारे प्लॉट KDA से मंजूर शुदा हैं। हमारे प्लॉट सोसाइटी की हुदूद में है, 1 इंच भी तजावुज नहीं किया। कब्जा ग्रुप ने सोसाइटी के चारों तरफ की बाउंड्री वॉल गिरा दी है। कब्जा माफिया के कारिंदों ने रिहायशी मकानों में घुसकर खवातीन को ज़दोकोब किया। मुतासरीन का बताना है कि इससे कबल भी कब्जा माफिया ने सोसाइटी में घुसने की कोशिश की थी। इस वाक़े की FIR दर्ज करवा दी है। कराची में कब्जा माफिया बेलगाम है। कराची के इलाके स्कीम 33 में कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ दिए हैं। स्टेट बैंक एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉटों पर कब्जे का मामला है। नामालूम अफराद ने सोसाइटी में घुसकर जेर तामीर प्लॉट्स की दीवारें गिरा दी हैं और नामालूम अफराद ने प्लॉट मालिकान को संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। मुतासरीन का इस हवाले से बताना है कि हमारे प्लॉट KDA से मंजूर शुदा है। हमारे प्लॉट सोसाइटी की हुदूद में है। हमने 1 इंच भी तजावुज नहीं किया। कब्जा ग्रुप ने सोसाइटी के चारों तरफ की बाउंड्री वॉल गिरा दी है। कब्जा माफिया के कारिंदों ने रिहायशी मकानों में घुसकर खवातीन को ज़दोकोब किया। इससे कबल भी कब्जा माफिया ने सोसाइटी में घुसने की कोशिश की थी। मुतासरीन का बताना है कि वाक़े की FIR दर्ज करवा दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, बताएगा स्कीम 33 में भी कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ दिए हैं। हाँ बिल्कुल, देखें स्कीम 33 के हवाले से ये तो खबरें आम होती हैं, ये बहुत सी शिकायत ऐसी हमें मिलती हैं कि वहाँ पर जो असल प्लाट मालकान है जिनके नाम जो है KDA ने लीज की हुई है, जिन्होंने बाकायदा खरीदी है, कानूनी तमाम दस्तावेजात उनके पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कब्जा माफिया ऐसा बासर वहाँ पर सरगर्म है जो ऐसी जगहों पर ऐसी मकानात पर जो कि खाली होते हैं कब्जा कर लेता है। ऐसी ये शिकायत आई है कि ये जो मुतासरीन है इनका कहना है कि हमने मकानात के
خریدے تھے اور باقاعدہ قانونی دستاویزات ان کے پاس KDA سے منظور شدہ لیز سمیت سب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے بنے ہوئے گھروں پر جو ہے قبضے کیے جا رہے ہیں۔ ایسی شکایت پہلے بھی موصول ہوتی رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو قانونی دستاویزات دینے والے ادارے ہیں KDA ہیں، جو لیز دیتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں، جو کہ وہ خاموشی اختیار کیوں کیے ہوئے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی ملی بھگت سے یہ ایسے کام جو ہے ہوتے ہیں جہاں پر جو یہ قبضہ مافیا باقاعدہ، جن کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر اسکیم 33 کے اندر یہ گروہ جو ہے مختلف شکلوں میں جو ہے وہاں پر یہ کارندے کام کرتے نظر آتے ہیں، جس کے اندر جیسے کہا جا سکتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر بڑا جو ہے وڈیرا ٹائپ کا جاگیردار ٹائپ کا بڑا ہے، وہاں پر بیٹھ کر جو ہے مختلف لوگوں کو جو ایسے کردار ادا کرتے ہیں کہ جو کہ قبضہ کرنے کے لیے مسلح ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹھنے کے بعد ظاہر ہے جس کی اصل ملکیت ہوتی ہے، جن کے پاس کاغذات ہوتے ہیں، وہ ٹکراؤ اس لیے نہیں کرتے، ان کو جان کو خطرہ ہوتا ہے، وہ پھر میڈیا سے رجوع کرتے ہیں یا پھر اپنی درخواست کی صورت میں متعلقہ اداروں سے، لیکن متعلقہ ادارے ان کے سنوائی نہ ان کی سنوائی کرتے ہیں، نہ ہی ان کو جو ہے قبضہ خالی کرانے کے لیے جو ہے کسی بھی قسم کے ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ ان مکانات سے قبضہ خالی کرواتے ہیں۔ یہی صورتحال ان متاثرین کی ہے۔ ان متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ اسکیم 33 کے اندر ان کے یہ گھر ہیں اور کافی عرصے سے یہ گھر ہے، اور جو کہ لیز ہیں KDA سے منظور شدہ ہے، تمام کاغذات جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان قبضہ مافیا جو کہ اتنا با اثر ہے وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ قبضہ نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ جو ہے دوسری فائلیں بنا کر جو ہے وہ فروغ بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن اصل مالکان جو ہے پیسہ خرچ کرنے کے بعد، جمع پونجی کرنے کے بعد جو ہے پھر بھی جو ہے وہ اپنے سر سے چھت جو ہے یہ نہیں بنا پاتے ہیں۔ یہ اسکیم 33 کا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہ کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جی حافظ انصاری ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ SHO صاحب ابھی آئے تو سارے بھاگ گئے، 2-3 بندے اٹھا کے لے گئے، انہوں نے ساری قبضہ خالی کرا کے دے دیا، لیکن اب پولیس تو سارا دن یہاں نہیں کھڑی رہ سکتی۔ اب یہ پھر آئیں گے تو ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی لائے عمل کریں، ان کو منع کیا جائے۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کراچی کے سرکاری اداروں میں انوکھے اقدامات، ایک جگہ سے معطل ہونے والے افسر کو دوسری جگہ پر ترقی دے دی گئی ہے۔ نوتاز آباد کے معطل ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن عبید الرحمان پر نوازشات۔ لاڈلے افسر عبید الرحمان کو ڈائریکٹر سینٹرل اینٹی انکروچمنٹ کا چارج تحفے میں دے دیا گیا ہے۔ کراچی کے سرکاری اداروں میں انوکھے اقدامات، ایک جگہ سے معطل افسر کو دوسری جگہ ترقی دے دی گئی۔ نوتاز آباد کے معطل ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن عبید الرحمان پر نوازشات۔ لاڈلے افسر عبید الرحمان کو ڈائریکٹر سینٹرل اینٹی انکروچمنٹ کا چارج تحفے میں دے دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ٹھیلے اور پتھارے مافیا کا راج ہے۔ حیدری، ناگن چورنگی اور نیو کراچی میں مافیا نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ علاقہ پولیس بھی مبینہ طور پر رشوت کے عوض خاموش دکھائی دیتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے باعث 40 فٹ کے روڈ 10 فٹ کے رہ گئے ہیں۔ ٹھیلے پتھاروں کے باعث فٹ پاتھ پر چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی ہے۔ کراچی کے سرکاری اداروں میں انوکھے اقدامات، ایک جگہ سے معطل افسر کو دوسری جگہ ترقی دے دی گئی۔ نارتھ ناظم آباد کے معطل ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن عبید الرحمان پر نوازشات۔ لاڈلے افسر عبید الرحمان کو ڈائریکٹر سینٹرل اینٹی انکروچمنٹ کا چارج تحفے میں دے دیا گیا ہے۔ رخ کریں گے کراچی کے علاقے نیو کراچی الاوالی کا۔ آپ کو بتائیں کہ سڑکوں پر بہتا سیوریج کا گندا پانی، مٹی اور ملبے کے بلند پہاڑ، گندگی اور غلاظت سے لدا ماحول۔ نیو کراچی الاوالی سے گزرنا کڑا امتحان بن گیا۔ سڑکوں پر گندے پانی کا تالاب بہنے لگا ہے۔ سیوریج لائن کی تنصیب کا کام غیر سنجیدگی کے باعث تعطل کا شکار ہے۔ گمبھیر صورتحال کے باعث عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ کاروباری اور مسافر بھی اذیتناک صورتحال سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ سڑکوں پر بہتا سیوریج کا گندا پانی، مٹی اور ملبے کے بلند پہاڑ، گندگی اور غلاظت سے لدا ماحول۔ یہ مناظر ہے نیو کراچی الاوالی کے، جہاں سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ نیو کراچی الاوالی کا گنجان آباد علاقہ سیوریج کے مسائل کی لپیٹ میں آ گیا۔
मरकजी सड़क पर सीवरेज का पानी बहने से मामूलात जिंदगी शदीद तरीन मुतासर है। इलाका मकीन राहगीर और कारोबारी हजरात मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। अरसा दराज से तालाब का मंजर पेश करती मरकजी सड़क की हालत कब सुधरेगी कोई बताने वाला नहीं। लाखों शहरियों की गुजरगाह अपने बदहाली की दास्तान सुनाकर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिला वस्ती इंतजामिया की कारकर्दगी खुलकर आया कर रही है, लेकिन अवामी मसाइल से किसी को कोई सरोकार नहीं। अवाम का कहना है कि सीवरेज लाइन की तनसीब का काम गैर संजीदगी के बाइस तातुल का शिकार होने से सूरत हाल गंभीर हो गई है। यहाँ से गुजरना किसी अजाब से कम नहीं है। न जाने कब बल्दियाती इदारे अपने फराइज की तकमील के लिए जागेंगे। तकरीबन ये 4-5 साल हो गया था ये आई हाल है। जब से ये कटिंग आया है नदी और ये रोड की कटिंग आया है, यहाँ की कोई गमख्वार नहीं है। यहाँ पे ऐसे हम लोग समझ रहे कि हम लोग इलाका गैर में पड़ा है, ऐसे समझ रहे हम लोग। पता नहीं हुकूमत कहाँ से। हम ये मुतालबा करता है कि फौरन फिलहाल जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए और हुकूमत इनकी तवज्जो दे दे। भाई गाड़ी को छोड़ो, आवाम की यहाँ पे इतना बदबू, यहाँ पे इतना जो भी मुश्किल हालात है हम लोग इनसे गुजार रहे हैं। हम लोग ये यहाँ के रहायशी है, तो आपकी मीडिया की वजह से शुक्रिया अदा करता है कि आप लोगों ने फिर भी थोड़ा नज़र तो डाल दिया। बस ये मेहरबानी करो कि उन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचा दो कि भाई यहाँ पे बीमारी इतना पिला हुआ है, गाड़ी माड़ी को छोड़ो। भाई आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने आप मंजर देख रहे हैं। ये आते जातों को कितनी परेशानी हो रही है, लोग आ नहीं सकते। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गाड़ी घुमा के इतनी दूर से ले जा रहे हैं। ये मस्जिद करें, यहाँ रोजाना कोई ना कोई हादसा होता है, किसी की गाड़ी टक्कर हो जाती है, कोई नाले के अंदर गिर जाता है। और यहाँ देख रहे हैं आप, एक मस्जिद ही नहीं 3-4 महीने से ये चल रहा है। रोडों पे पानी जमा हो जाता है। तकरीबन आप 3-4 बजे आगे देखें, इधर मस्जिद लेन लग जाती है गाड़ियों की, इतना पानी होता है, 3-4 फीट पानी हो जाता है। बहुत मुश्किल है बेचारों के लिए। ये देखो ये गटर वगैरह ये फटे हुए हैं, रोड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किलों में गुजर रहे हैं लोग। ऊपर से मुतालबा ये करो कि भाई ये बनवा लो, ये गरीब आवाम ये परेशान है, यही बनवा ले, रोड वगैरह बनवा ले, ये क्या बयान करेंगे। सीवरेज मसाइल से 2-4 न्यू कराची अलावाली के बासियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत यहाँ की अबतर सूरत हाल का नोटिस लेकर गफलत बरतने वाले अफसरान को निशान इबरत बनाए, ताकि आइंदा कोई अफसर महकमाती फराइज से मुंह ना मोड़ सके। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।